ایک دنیا کا مال ہے اور ایک آخرت کا مال ہے۔ دنیا کا مال عارضی ہے، آخرت کا مال دائمی ہے۔ دنیا کا مال جتنا بھی کما لیا جائے ہوس ختم نہیں ہوتی۔ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی، اللہ کریم کثیر نعمتیں، وافر نعمتیں، بہت زیادہ نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 167 167۔ وَإِذْ اور جب، تَأَذَّنَ اعلان کر دیا، رَبُّکَ آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ کہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، اِلیٰ یوم القیامۃ قیامت کے روز تک، من جو یسومہم چکھائیں گے انہیں، سوء العذاب برا عذاب، ان بے شک ربا کا آپ کا رب، لسریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا تذکرہ جاری ہے، اور گزشتہ آیات کے اندر قوم کے بندر بنائے جانے کا ذکر ہوا، جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں نافرمانی سے کام لیا، جنہیں حکم تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں مت پکڑیں، اور وہ ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک سیکنڈ آپشن نکال لیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن صرف تالابوں کے آگے بند ڈال دیتے تھے، اور اتوار کے دن جا کر وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے یہود کی پچھلی ساری تاریخ کے پیش نظر ایک بات ارشاد فرمائی بطور قانون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی زبانی بنی اسرائیل کو اس بات سے باور کرا دیا تھا، اس بات سے آگاہ کرا دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو تمہیں مسلسل اذیت کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکَ اور اعلان کر دیا، اور جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے۔ اب یہ اعلان کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے رب نے انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل تک یہ خبر پہنچا دی تھی، لَيَبْعَثَنَّ کہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، اِلیٰ یوم القیامۃ قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب۔ اب اس برے عذاب کا مطلب یہ ہے اذیت، تکلیف، مظالم، جو ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کریں گے، وہ بطور عذاب ہوگا، وہ بطور سزا ہوگا۔ ایسے جابر لوگ ان کے اوپر مسلط کیے جاتے رہیں گے جو ان کو اذیتوں میں رکھیں گے، ان کو تکلیفوں کے اندر رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں اللہ کریم نے اپنی دونوں طاقتوں کو بیان فرما دیا کہ میں عذاب دینے والا بھی ہوں، میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانیوں کی ایک طویل داستان کے اوپر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے اوپر ایسے لوگ ہمیشہ مسلط کیے جاتے رہیں گے، ان کے اوپر ایسے لوگ حکومت کرتے رہیں گے کہ جو ان کو ان کی برائیوں کا، ان کی نافرمانیوں کا مزہ چکھائیں گے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی پرانی ہسٹری دیکھیں تو بخت نصر جیسا بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ اسی طرح روم کے عیسائی بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوئے، اور انہوں نے ان کو شدید ایذاؤں میں، تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا۔
अगर हम दौरे हाज़र की बात को देखें, ज़माना माजी करीब की बात को देखें, तो जर्मनी के अंदर हिटलर ने इनके लाखों अफराद को लुक़मा अजल बनाया। आज भी अगर आप इनकी तारीख़ और इनकी हिस्ट्री को देखें तो वो यही बताती है कि ये लोग तरह तरह के फितनों के अंदर मुब्तला रहते हैं और दुनिया के अंदर इनको इज्जत का मकाम हासिल नहीं है। लोग इनके ऊपर आज भी लान तान ही करते हैं क्योंकि इनका काम फितना बाजियाँ हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियाँ हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जियाँ हैं और अपने आप को ये लोग आज भी इंतहाई नेक ख्याल करते हैं। अपने आप के बारे में, अपने बारे में ये तसव्वुर यही रखते हैं कि हम अल्लाह ताला के बड़े चहेते हैं, बड़े लाडले हैं, हम अल्लाह ताला के इंतहाई इताअत गुजार बंदे हैं। अब देखें अल्लाह करीम ने अगली आयत के अंदर इनकी इसी हिस्ट्री के पेश नज़र, इसी इनकी पुरानी तारीख़ के पेश नज़र इरशाद फरमाया, वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, और हमने बांट दिया इन्हें ज़मीन के अंदर कई ग्रोहों में। वक़त्तअनाहुम, और हमने बांट दिया इन्हें फ़िल अर्दि, ज़मीन में, उममन, कई ग्रोहों में। अब जो इनके ये ग्रोह हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया है, यूनिटी को ख़त्म कर दिया है। ये आपस में कई धड़ों का शिकार हैं, कई ग्रोहों का शिकार हैं। मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, मिनहुम, इनमें से कुछ लोग, अस्सालिहून, नेक हैं, व मिनहुम दून ज़ालिका, और इनमें से कुछ लोग और तरह के हैं। और तरह का मतलब यानी इन नेक लोगों के अलावा कुछ लोग हैं जो कि बदकार हैं, जो कि इंतहाई नाफरमान हैं। अब यहाँ सालिहीन से मुराद कौन लोग हैं? सालिहीन से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने हक़ का साथ दिया है, जो यहूद में से होने के बावजूद वो ईमान लाए, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, दाखिल इस्लाम हुए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने इताअत की, ग़ुलामी इख्तियार की। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु यहूद के बहुत बड़े आलिम थे मगर ईमान लाए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और भी कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। तो अगरचे ये तादाद में कम लोग थे मगर ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं कि जो यहूद में से होने के बावजूद वो मुसलमान हो जाते हैं। अब आगे देखिएगा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वबलौनाहुम बिल हसनाती वस्सय्यिआती, और हमने आजमाया उन्हें नेमतों के साथ और तकलीफ़ों के साथ। अल्लाह ताला का ये एक कानून है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हिदायत के लिए, किसी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए उसे नेमतें भी अता करता है, खुशहालियाँ भी अता करता है, तरक्कियाँ भी अता करता है, सरफराजियाँ और कामयाबियाँ भी अता करता है। और अगर वो उन नेमतों की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उन्हें मुख्तलिफ़ अज़ियतों, तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला करता है। और नेमतें और तकलीफ़ें इसीलिए होती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मौका देता है कि हो सकता है कि ये इन नेमतों को पाकर हिदायत की तरफ आ जाएं, या हो सकता है कि इन्हें तकलीफ़ों में खुदा याद आ जाए। अगर खुशियों में खुदा याद नहीं आ रहा तो हो सकता है दुखों में खुदा याद आ जाए, और दुखों में अल्लाह ताला की अहकाम की बजा आवरी की तरफ ये माइल हो जाएं। तो अल्लाह करीम का ये एक अंदाज़ है हिदायत का, खुशी देकर और गमी देकर, राहतें देकर और तकलीफ़ें देकर, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, फिर जानशीन बने उनके बाद वो नाखल्फ लोग, वो नालायक लोग। फ़ख़लफ़ा, फिर जानशीन बने, मिन बादिहिम, इनके बाद, खल्फ़ुन, वो नाखल्फ या नालायक, वारिसू, जो वारिस हुए, अल किताबा, किताब के, याख़ुज़ूना, वो लेते हैं, अरद, माल, हाज़ल अदना, इस दुनिया का, वा, और यक़ूलूना, कहते हैं, सयुग़फ़रु लना, कि ज़रूर बख्श दिया जाएगा हमें, व इन, और अगर, यअतिहिम, आ जाए उनके पास, अरदुन, और माल, मिस्लुहु, इस जैसा, याख़ुज़ूहु,
तो ले लें उसे भी। अलम युखज़, क्या नहीं लिया गया था, अलैहिम, इनसे, मीसाकु, पुख्ता वादा, अल किताब, किताब में, अन के, ला यकूलू, ना मंसूब करें, अलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, इल्लल हक, सिवाय हक, व दरसू, और पढ़ लिया उन्होंने, माफ़ी ही, जो किताब में था, व दारुल आखिरतु, और दार आखरत, खैरुन, बेहतर है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यत्तकून, जो मुत्तकी हैं, अफला ताक़िलून, क्या तुम नहीं समझते। आयत मुबारका के अंदर अल्लाह करीम ने कुछ नालायक लोगों का, बनी इसराइल के इंतहाई हट धर्म तबके का, इंतहाई ज़िद्दी तबके का और इंतहाई नालायक तबके का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो लोगों से रिश्वत लेते हैं, जो किताब के वारिस तो हुए, किताब, दावा ये है कि हम किताब के ऊपर कारबंद हैं, तौरात किताब के ऊपर हम कायम हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है कि जब लोग इनके पास आते हैं कि ये रिश्वत ले लो और हमें तौरात का हुक्म बदल के सुना दो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें फतवा जारी कर दो, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें पाक दामनी का सर्टिफिकेट दे दो। गुनाहगार लोग इनके पास आते, अपने गुनाह लेकर इनके पास आते और कहते कि हमें तुम डिक्लेयर कर दो कि हम कामयाब लोग हैं, हम बख्शे जाएंगे, हम मुआफ़ कर दिए जाएंगे। गुनाह तो हमने किया लेकिन हमें हमारे गुनाह की कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो वो किताब के वारिस लोग, वो किताब के हामिल लोग, वो किताब को जानने वाले लोग, किताब के उलमा, वो क्या करते हैं, वो लोगों से इस दुनिया का माल ले लेते हैं। देखिए आयत को, या खुज़ून अरद हाज़ल अदना, ले लेते हैं माल इस दुनिया का, वयक़ूलून, और कहते हैं सयुग़फ़रु लना, कि ज़रूर बख्श दिया जाएगा हमें। उन उलमा से फतवा ले लेते हैं, उनको पैसे देकर, उनको माल, दुनिया का माल देकर, दुनिया का लालच देकर, उनसे पाक दामनी का, अपने मासूम होने का, अपने नेक होने का, अपने जुर्म से बख्शिश का वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और ये किताब के वरसा लोग, किताब के उलमा लोग, वो उनको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ये इस कदर ज़िद्दी हैं, ये नहीं है कि ये कोई भूल कर ये गुनाह करते हैं, ये दीदा दानिस्ता जानबूझ कर इस गुनाह के अंदर मुलव्वस होते हैं। इनकी हालत ये है, ये दुनिया के इतने, ज़र के इतने पुजारी बन चुके हैं, माल के इतने हरीस और लालची बन चुके हैं। व इन यअतिहिम अरदुम मिस्लुहु यअखुज़ूहु, और अगर आ जाए उनके पास और माल इस जैसा तो ले ले उसे भी। इनके अंदर माल की इतनी भूख है, इनके अंदर माल की इतनी हवस है कि अगर लोग आकर इन्हें और माल दें तो वो उस माल को भी ले लेंगे, रिश्वत से बाज नहीं आएंगे, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह ताला के अजाब से नहीं डरेंगे। अजाब से इन्होंने खुद क्या डरना है, ये लोगों को अजाब से बख्शिश के सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, लोगों को पाक दामन, लोगों को गुनाह से पाक होने के ये डिग्रियां जारी कर रहे हैं। अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताबी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अलम युखज़, क्या नहीं लिया गया था, अलैहिम, इनसे, मीसाकुल किताब, किताब में पुख्ता वादा। ये तो वो लोग हैं कि इनसे किताब में पुख्ता वादा लिया गया था, अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, कि ये अल्लाह की तरफ कोई बात सिवाय हक़ के मंसूब नहीं करेंगे, ये हक बात बयान करेंगे, हक के सिवा ये कुछ भी नहीं कहेंगे। ये इन्हें हुक्म दिया गया था। व दरसू माफ़ी ही, और पढ़ लिया इन्होंने जो किताब में था, यानी किताब के अंदर जो पुख्ता वादा इनसे लिया गया था वो वादा इन्होंने पढ़ लिया था। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की भूख, ये दुनिया की हवस, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये दुनिया का माल जितना लेते जाएंगे, इनके अंदर दुनिया की हवस, दुनिया की हिर्स, दुनिया का लालच उतना ही बढ़ता चला जाएगा। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और दारे आखिरत बेहतर है उनके लिए जो मुत्तकी हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ये दुनिया की नेमतें कोई चीज़ नहीं है, ये दुनिया का माल कुछ भी नहीं है। आखिरत का जो घर है वो अल्लाह ताला के परहेजगारों के लिए बेहतर है, वो सही है,
وہ دائمی مال ہے، وہ ابدی مال ہے۔ آخرت کا مال یعنی کہ نیکیاں، نیک اعمال، یہ ہے دائمی مال، ابدی مال، اصل مال، باقی رہنے والا مال۔ اور افلا تعقلون، کیا یہ لوگ، اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگوں کو اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک دنیا کا مال ہے اور ایک آخرت کا مال ہے؟ دنیا کا مال عارضی ہے، آخرت کا مال دائمی ہے۔ دنیا کا مال جتنا بھی کما لیا جائے ہوس ختم نہیں ہوتی۔ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی، اللہ کریم کثیر نعمتیں، وافر نعمتیں، بہت زیادہ نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اس شکل میں کہ نیکیاں اگرچہ کم بھی ہوں گی، اجر اور جزا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔